पहले जीरो डायमेंशन है ना बेटा, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। हाँ, जीरो डायमेंशन में क्या होता है, all dimension are in the nano scale, that is it is in the range of 1 to 10। nano scale मतलब 1 to 100, सॉरी 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में जो भी पार्टिकल्स होंगे उसको हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, और उस डायमेंशन को नैनो डायमेंशन या नैनो स्केल कहते हैं। तो इन जीरो डायमेंशन ऑल थ्री डायमेंशन आर इन द रेंज ऑफ मतलब लेस दैन 100 नैनोमीटर। इन वन डायमेंशन two dimension are in a nanoscale, but one is not in a nanoscale. It may be smaller than 1 nanometer or it may be greater than 100 nanometer. In two dimension, one dimension is in nanoscale while two are not in a nanoscale. Okay, and what about the three dimension? All three are not in nanoscale, hence they are not a nanoscale dimension. Now, कल हमने definition of nanochemistry लिखा था, the branch of chemistry that deals with designing and synthesis of the material of the nano scale with the different size, shapes and structure and composition and application for the functional architectures is called as nanochemistry. Actually, nanochemistry is the combination of nanoscience plus chemistry. Now, what is the importance of nanochemistry? Nanochemistry are used in chemical, physical, material science as well as in the technology, that is engineering, biological and medical application. Okay, do you know में जो question है, it is very important. जो point दिया है, do you know में a very highly application of nanochemistry is in medicine. बताया था जब हमने what are the aims, मतलब why we need to study the nanochemistry, उसमें देखा था हमने कि जो फाइबर्स है या सन ग्लासेस है या ऑप्टिकल ग्लासेस आप यूज कर रहे हो, along with the medicines are made up from nanochemistry. Now medicine में अभी ये धूप है तो लड़कियां सनस्क्रीन लगाते हैं। ओके, तो सनस्क्रीन में आज घर में जाकर पढ़ लेना कि उसका कंपोनेंट क्या है। The sunscreen is mainly made up of titanium oxide and zinc oxide nanoparticle. किससे बनता है? टाइटेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल। किससे बना हुआ है? टाइटेनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड नैनोपार्टिकल। नाउ ये करेंगे क्या? सो दीज आर द act as a photocatalyst. We bring about the reaction जो अल्ट्रा रेज को क्या करते हैं, absorb करते हैं और हमारे बॉडी में penetrate नहीं हो देने देते, and hence they prevent the tanning. So a simple skin care product of nanochemistry is sunscreen. Sunscreen contains the zinc oxide and titanium oxide. This chemical protects the skin against the harmful UV rays by absorbing or reflecting the light and prevent the skin from damage. IMP question है पीछे. Which chemical are used in sunscreen? कौन सा यूज होता है सनस्क्रीन में? Zinc oxide and titanium oxide nanoparticle. Okay, zinc oxide, titanium oxide normal वाला नहीं, nanoparticles. Now characteristic features of the nanoparticle. हमने देखा था नैनो पार्टिकल के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है? ऑप्टिकल, मैग्नेटिक, कैटालिटिक, कलर, देन सरफेस एरिया देखा था इसके पहले। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो पार्टिकल। सो लेट डिस्कस वन बाय वन। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल है कलर। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज द कलर ऑफ द गोल्ड? रेड है, इट इज शाइनी येलो, बट इट इज द कलर ऑफ द बल्क गोल्ड, मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो एटम्स है गोल्ड के होते हैं। सो द ओरिजिनल मतलब गोल्ड का सिंबल Au, तो बल्क में अगर होगा तो उसका कलर क्या है? अरे बल्क मतलब शाइनी येलो। लेकिन अगर इसके हमने 100 एटम्स लिए, ओके, 100 एटम्स ऑफ गोल्ड, इट विल कन्वर्टेड, द कलर विल बी रेड। ओके, सो द कलर ऑफ द बल्क मटेरियल एंड द नैनो मटेरियल आर डिफरेंट। जो कलरलेस है वो कलर भी शो करते हैं, या जिसका कलर है वो कलरलेस भी बन सकते हैं व्हेन दे आर कन्वर्टेड इनटू नैनो पार्टिकल। ओके,
Now look at the page number 346. Color. You know that what is meant by color? Color is an optical property which is occurred due to the absorption and emission of the radiation, that is light. So it is an optical property that is different from nanoscale. चार्जेस संपले का Okay, so color is an optical property which is different at the nanoscale. मतलब whenever any substance, whenever any object converted into, या whenever any element when converted from bulk to nanoparticle, its color may be changed. So example दिया है, elemental gold as we know it has a nice shiny yellow color. However, if we had take only 100 gold atom, the color is changes to red. Okay. Now 3 test tubes are given. देखो वहाँ पे 3 test tube है, A, B, C. What is the color of A? Yellow. It is dissolved in aqua regia. समझ में आ रहा है? You know that gold is insoluble in any solvent. Only it is soluble in aqua regia. So this is the color of gold in aqua regia. Then अगर इसको, this is the bulk solution. इसको अगर हमने नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट किया, द कलर इज चेंजेस टू रेड. नैनो पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया हमने? 100 एटम्स लिए हुए हैं. ओके. सरफेस एरिया प्लीज ध्यान दो. स्टार्ट करो. सो दिस इज द, ये डस्टर है. Now what is the surface area? ये ऊपर का, this one and this one. So their surface area, you know that chemical reaction is takes place on the surface. अभी ये bulk material है, उसका surface area definite है. लेकिन अगर इसके मैंने pieces किए, suppose इसको मैंने 2 भागों में divide किया, तो surface area बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. अभी हम सिर्फ 4 इसके 1 2 3 4 साइड यूज कर रहे हैं. अगर हमने बीच में से इसको काट लिया तो हमें और सरफेस मिल रहा है, मतलब ये जो बीच है वो भी पार्ट मिलेगा. फिर हमने इसके और पीसेस बनाए, ये जो बनाए 2 बनाए थे उसके और 2 बनाए, तो सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा. सो when we convert the bulk material into the nano material, surface area is increasing. Okay, where bulk material का साइज बहुत बड़ा है तो उसका जो सरफेस एरिया वो कम है. लेकिन जब बल्क मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द नैनो पार्टिकल, सरफेस एरिया क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा. जितना सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा उतना सरफेस अवेलेबल होगा फॉर केमिकल रिएक्शन, एंड रिएक्शन कैसे होगी? फास्ट. ओके. सो सरफेस एरिया आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो मटेरियल. नाउ लुक एट द पेज नंबर 346 अगेन. High surface to volume ratio is very important characteristic of the nanoparticle. If a bulk material is subdivided into groups of individual nanoparticles, the total volume remains same. Volume नहीं change होगा, लेकिन क्या होगा? Surface area बढ़ेगा. So as surface area is increases, with the large surface area for the same volume, this small particle react much faster because more surface area provides more number of reaction sites and leading to more chemical reactivity. Okay, so as surface area increases, the rate of chemical reaction also increases and reaction become faster. Okay, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल लिया है, एक उन्होंने क्यूब लिया है. What is the area? एरिया क्या है इसका? 6 into 1 meter. मतलब all ratios are 1. So 1 meter square it becomes 6 meter square. Now इस क्यूब को हमने डिवाइड किया into 4 parts. अभी इसके कितने और पार्ट्स बने? अरे और इसके कितने पार्ट्स बने? हमने डिवाइड किया उसको सब डिवाइड. So it become 6 into. अभी हाफ बने और पार्टिकल्स उसके अगर आपने काउंट किया तो 8 ब्लॉक्स बनेंगे. कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 8 ब्लॉक्स. ओके. सो ये जो 1 था अभी ये क्या हो जाएगा? हाफ. अरे एक एज की लेंथ 1 मीटर है
अगर दो भागों में डिवाइड किया तो अल्टीमेटली इट बिकम हाफ, ओके, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितने पार्ट बने 8, तो क्या होगा 6 इंटू 1/4 इंटू 8, तो 4 1, सो इट बिकम 12 मीटर स्क्वायर। पहले कितना था 6, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, टोटल ब्लॉक्स कितने बने, पहले कितने ब्लॉक्स थे, अरे एक ही था, अभी कितने बने 6, सॉरी 8, तो सरफेस एरिया इज ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके। सिमिलरली फिर से हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, ये जो ब्लॉक है पहले हमने कितने में डिवाइड किया था 2 में, सपोज अभी इसको हमने 3 में डिवाइड किया, ओके, पहले हाफ में किया था, अभी क्या किया 1:3 में, तो क्या होगा अब एरिया 6, 1 का हमने कितना पार्ट किया 1/3, अभी कितने बनेंगे, अरे कितने पार्टिकल्स बनेंगे 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बॉटम और नीचे टोटल कितना हो गया 27, तो 6 इंटू 1/9 इंटू 27, 9 1 जा 9, 9 3 जा, सो इट बिकम, सो जब हम किसी भी बल्क मटेरियल को नैनो मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसका साइज हम डिक्रीज करते हैं, ओके, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मोर रिएक्शन साइट विल बी अवेलेबल। अभी सिर्फ देखो पहले जो क्यूब था उसका इतना ही पार्ट यूज करते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड किया तो मोर पार्ट्स अवेलेबल फॉर द बॉन्डिंग एंड हेंस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस। गॉट इट एवरीबॉडी? सो हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, पहला कलर, द कलर इज डिफरेंट फॉर द बल्क मटेरियल एंड नैनो मटेरियल, and second is the surface area. When bulk material is converted into nano material, its surface area increases. As its surface area increases, more reaction site will be available, and as more reaction site is available, rate of reaction increases and reaction speed up. Clear? Now next one is the catalytic property IRP. Okay, catalytic property. What is meant by catalyst? What is meant by catalyst? Yeah, to increase the substance. The substance which increase the rate of chemical reaction is called as catalyst. क्या होता है catalyst? ऐसा substance जो reaction की speed को बढ़ाता है और टाइम को डिक्रीज करता है, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं कैटलिस्ट। ओके, सो कैटलिस्ट इज द इम्पोर्टेंट रिएक्शन, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जिसके वजह से हम रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाकर टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी को बचा सकते हैं। सो इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। यस, देखा था हमने यूज ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को रिएक्शन में यूज करना चाहिए, देखा था ना। ओके, नाउ अगर हम हमारे नॉर्मल रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसका साइज बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने रेस लगाई, एक सुपर और एक छोटा बच्चा, अच्छा जाने दो, एक छोटा बच्चा और एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, मतलब एजेड इंसान के बीच में कौन जीतेगा? छोटा बच्चा जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि उसका मास कम है, उसका साइज कम है। जितना मास कम होगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मतलब स्पीड ज़्यादा होगी। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल कैटलिस्ट एंड नैनो साइज कैटलिस्ट? नैनो साइज कैटलिस्ट का साइज स्मॉल है, एज इट हैविंग द स्मॉल साइज द रेट इज मोर देन द नॉर्मल कैटलिस्ट। नॉर्मल कैटलिस्ट इज कॉस्टली, ठीक है, उसको हम रीयूज नहीं कर सकते, लेकिन नैनो पार्टिकल्स, नैनो कैटलिस्ट को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टी एंड कैन बी रीयूज। ओके, सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द नैनो साइज पार्टिकल? उसको हम यूज करने के बाद आइसोलेट करके फिर से यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन आइसोलेट द nano catalyst and reuse. So this is the benefit of the nano particle when used as a catalyst. Okay, so third property is catalytic activity. So nano size particle can be used as a catalyst in many chemical reaction. So due to increase in a surface area,
with decrease in a particle size, nano material based catalyst show increase catalyst activity. मैंने बताया था जितना small size होगा उतना velocity उतनी speed ज़्यादा होगी. Usually they are heterogeneous catalyst. बेटा heterogeneous मतलब वो mix नहीं होते. Homogeneous मतलब एक ही phase में जो रहता है उसे homogeneous कहते हैं और जो दो अलग अलग phase में रहते हैं उसे heterogeneous कहते हैं. So as they are heterogeneous, मतलब they are not involved in the reaction, they only speed up the reaction. ज्यादा बाहरी समर्थन बनते है ना, बाहरी समर्थन सुना होगा ना, तो ये क्या करता है रिएक्शन की ओनली रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग इन द रिएक्शन. समझ में आ रहा है? इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बट नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. अगर वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो इसको हम इसीलिए आइसोलेट कर सकते हैं क्योंकि हेट्रोजीनियस है, फिल्टर करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं. सो आइसोलेट करके क्या यूज कर सकते हैं, फिर से रीयूज कर सकते हैं. सो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नैनो पार्टिकल. सो यूजुअली दे आर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. दैट मीन्स catalysts are in a solid form and reaction occur on the surface of the catalyst. Nanoparticle catalysts can be easily separated and can be recycled. Example, platinum, palladium and nickel are used in hydrogenation reaction. लेकिन अगर हमने नैनो साइज प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकेल यूज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीजेस more than the when we use the normal catalyst. Okay, so what are the example of the catalyst? पहला है nano size, platinum, palladium, nickel in hydrogenation reaction. What is meant by hydrogenation? Addition of hydrogen. Second क्या है? Titanium oxide and zinc are used in photocatalysis. अभी हमने पास सनस्क्रीन में इसको यूज करते हैं क्योंकि ये कौन से रिएक्शन शो करते हैं? फोटोकैटालिसिस. मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल ब्रेक डाउन. ओके, वो क्या करता है? ब्रेक डाउन हो जाता है. सो नेक्स्ट वन इज ZnO एंड टाइटेनियम ऑक्साइड. इसमें फोटोकैटालिसिस. नेक्स्ट वन इज गोल्ड. सो गोल्ड मैंने आपको क्या बताया था? एक्चुअली गोल्ड इज अ इनर्ट एलिमेंट, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता. लेकिन नैनो साइज गोल्ड इज यूज इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन. यस, सो नॉर्मल गोल्ड इज अनरिएक्टेड while nano size gold is can be used in organic reaction. So this is the one of the important characteristic of the nano particles. Clear? Now thermal property. Thermal मतलब heat. So melting point. Thermal property, it means melting point. So melting point of nanomaterial change drastically and depends upon the size. Now tell me, इसका melting point increase होगा या decrease होगा? जब हम bulk material में 1, 2, 3, 4 ग्रीन टी शर्ट खड़े हो जाओ. जब बल्क मटेरियल नैनो मटेरियल में कन्वर्ट होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? यस, डिक्रीज होगा क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है. तो बेटा जब हम नैनो मटेरियल यूज करते हैं तो हम एनर्जी सेव कर सकते हैं. यस, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के लिए मतलब मैं कोई भी चीज को मेल्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा एनर्जी. लेकिन व्हेन bulk material is converted into nano material, size is reduces, mass is reduces, hence its melting point also decreases. Now take an example. Sodium cluster of 100 atoms are appear to melt at 288 Kelvin. कितना है सोडियम के? 1000 atoms कहाँ पे मेल्ट हो रहा है? 288 Kelvin. While अगर इसके 10,000 लिए तो यस 303 केल्विन. लेकिन बल्क जो सोडियम है, बल्क सोडियम एटम कहाँ पे मेल्ट हो, कितने के टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है? 371 केल्विन. नाउ बेटा देखो नियरली 100 केल्विन का डिफरेंस है. 100 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस. सो हम अगर बल्क मटेरियल
ओके, वी कैन सेव द टाइम, वी कैन सेव द एनर्जी। नाउ समझ में आया दोनों लेसन एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि जो ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स थे हम यूज कर सकते हैं यूजिंग द नैनो पार्टिकल। ग्रीन केमिस्ट्री में बताया था कि अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो रिएक्शन टाइम को बचाएंगे, केमिकल्स को बचाएंगे, एनर्जी को बचाएंगे। सेम थिंग अगर हम नैनो पार्टिकल्स को यूज करेंगे तो एनर्जी सेव होगा। तो डिजाइन फॉर एनर्जी इफिशिएंसी एक प्रिंसिपल था, तो उसके तहत अगर हम नैनो पार्टिकल्स को यूज करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी सेव होगा। ओके, दो प्रिंसिपल बच्चे वो हम करेंगे। ओके